Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thotham, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद पॉल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं पॉल थॉटम। Prime Minister Narendra Modi appeals for balanced and mutually beneficial agreement between countries participating in Regional Comprehensive Economic Partnership Summit in Singapore. Wholesale inflation rises to a 4-month high of 5.28% in October this year, and benchmark domestic indices close almost flat. Rupee appreciates 36 paise. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में हो रहे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी सम्मेलन में भागीदार देशों के बीच संतुलित और आपसी हित वाले करार की अपील की। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष अक्टूबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.28% पर पहुंची और घरेलू सूचकांक बिना किसी बदलाव के हुए बंद, रुपया 36 पैसे चढ़ा। The negotiations are on amongst 10 ASEAN countries and 6 Asia-Pacific states with which ASEAN has free trade agreement. The 6 Asia-Pacific countries are India, China, Australia, Japan, South Korea and New Zealand. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's commitment to early conclusion of high-quality, comprehensive and balanced regional economic partnership agreement. Intervening in the Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP summit in Singapore, Mr. Modi urged all the leaders to give required mandate to their trade ministers so that RCEP negotiations can be concluded at the earliest. Prime Minister Modi said that the finalized agreement should be modern, comprehensive, balanced and mutually beneficial. Mr. Modi noted that significant progress has been made in the market access negotiations of goods. He underlined the need to make similar efforts to make progress in services negotiations, as they constitute more than 50% of the GDP of most of the RCEP countries. Prime Minister Narendra Modi has said that there is a great opportunity for US to make defense equipments in India and set up defense industry, as India can become a hub of export to the rest of the region. Mr. Modi said this during a meeting with the US Vice President Mike Pence in Singapore on the sidelines of the ASEAN summit today. क्या कहेंगे मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो आरसीईपी की मीटिंग हो रही है, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, ये कितना इम्पोर्टेंट है? इसमें 16 देश हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक मल्टीलैटरलिज्म की तरफ एक जो अभी एक प्रोटेक्शनिज्म का पूरा क्रिएट किया है यूएस ने विश्व में एक ट्रेंड, उसमें एक इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है इस समिट की, और भारत के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अरेंजमेंट है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप, और इसका ये कैसा महत्वपूर्ण, मैं जरा 2-3 शब्दों में इसकी मैं आंकड़ों से मैं बताऊंगा इसका, कि ये 16 जो देश जो हैं, 16 अर्थनीति जो इकोनॉमीज जो हैं, इनका करीबन अगर पॉपुलेशन देखेंगे, विश्व की आधी पॉपुलेशन इन 16 कंट्रीज में है। और दूसरी बात है कि जो ग्लोबल जीडीपी जो है, जिसे हम कहते हैं, वो 1/3 ये 16 कंट्रीज में है। और अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जिसकी आपने जिक्र की, उसका है कि 1/4 यानी 25% का ये 16 कंट्रीज में है। भारत में इसमें अंशग्रहण करने की काफी एक
एक संदेह था कितना क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो आसियान मेंबर जो हैं 10 मेंबर जो आसियान जो हैं ये चाहते हैं कि भारत इस जो अरेंजमेंट में इसमें भाग ले, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि जो मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर एक भारी चोट लगने के बाद अब ये देख रहे हैं कि अगर यूएस और नाफ्टा एक बड़ा एक ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, यूरोपियन यूनियन एक बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक होता है, तो बाकी जो देश जो हैं ये जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, इंडिया और बाकी जो 10 आसियान कंट्रीज जो हैं इनका एक मार्केट बन सकता है कि नहीं। और इसी का एक सूचक ये है कि भारत ने इस बार प्रधानमंत्री के दौत्य से जाकर ये साफ जाहिर कर दिया कि भारत इसमें बहुत ज्यादा ही इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और चाहता है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आसियान ये चाहता है कि भारत भी रहे, क्योंकि इतनी बड़ी गुट में अगर एक चाइना रह जाए, ये चाहते हैं कि भारत जैसा एक बड़ा देश जिसके बाद बहुत बड़ा मार्केट है वो भी इसमें रहे, जिससे कि भारत एक काउंटरवेलिंग फोर्स भी ऐसा उस रोल प्ले कर सके। तो एक बहुत बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये, और आशा तो हमें यही थी कि इस बार इस मीटिंग में ही शायद कंक्लूजन हो जाए इस एग्रीमेंट का, पर जो हमें अभी तक खबर मिल रही है इसमें कि एक सब्सटैंशियल कंक्लूजन हो गया है और तालमेल आ गई है कि सर्विसेज आएगा क्या नहीं आएगा, गुड्स क्या नहीं आएगा। बहुत शंकाएं भी आज इंडियन इंडस्ट्री ने किया था कि इंपोर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी एग्रीकल्चर की जो एफिशिएंसी जो है उसमें एक बहुत बड़ा एक मार्केट मिलेगा। चाइना का मार्केट मिल जाएगा हमें, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट मिल जाएगा और आसियान कंट्रीज का मार्केट मिल जाएगा। जापान के साथ तो हमारा ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही। तो मैं मानता हूं कि भारत के लिए अगर एक तृतीयांश भारत की जो विश्व की अर्थनीति है उसकी एक तृतीयांश मार्केट में एक इजी एक्सेस मिलेगा, एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर हम अपनी ही प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी गेन्स के ऊपर अगर ज्यादा ध्यान दें। मगर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो मार्केट एक्सेस है वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट ना करे। सो आपको लगता है कि शायद इसमें चीन जैसे देश के साथ, जहां हमेशा एक वो रहा है, डर रहा है कि वहां से चीप इंपोर्ट्स आते हैं, या साउथ कोरिया या जापान, वहां पर हमें काफी ध्यान रखकर ये एग्रीमेंट पर उसकी बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी होगा। देखिए, जो संरक्षणशील जो नीतियां होती हैं उससे आर्थिक जो इनएफिशिएंसियां वो बढ़ती हैं। तो अगर संरक्षणशील नीतियां अगर हम अपनाते हैं, इससे हम हमारी जो डोमेस्टिक अर्थनीति की जो खूबियां हैं उसको वो उभर के नहीं आएगी। अगर मार्केट प्रोटेक्टेड रहे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी प्रोटेक्टेड रहता है और वो एफिशिएंसी को गेन करने की कोशिश नहीं करता है। पर अगर मान लीजिए मार्केट खुल गया तो जैसे हम चाइना में आज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना ने काफी बार इंपोर्ट उसमें काफी कर्व्स लगाए हैं। पर आरसेप के होने से मुझे लगता है कि भारत की जो रास्ता, जो चाइना के इतनी विशाल मार्केट है, वो खुल जाने की बहुत उम्मीद है हमें। तो हमें इसको भारतीय इकोनॉमी की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, कि बल्कि हमें देखना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री की मार्केट एक्सेस बढ़ती है कि नहीं। अगर बाहर से अगर विदेश की सर्विसेज या गुड्स आती हैं, पर उससे अगर हमारी एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है तो हमारे अर्थनीति के लिए लाभदायक है, मेरा मानना यह है। सिंगापुर में कुछ और द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई प्रधानमंत्री की कुछ खास देशों के साथ, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक से परे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों से अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकातें की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग के साथ मुलाकात में दोनों नेताओं ने वित्तीय प्रौद्योगिकी, विस्तारित संपर्क सुविधाएं और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ बातचीत के दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श किया। प्रमुख क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत श्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा संपर्क सुविधाओं के बारे में चर्चा की। ये तीनों देश
एडवांस्ड नेशंस, हम हमारे मुकाबले शायद ज्यादा एडवांस्ड नेशंस हैं, ऐसे में हमें क्या क्या फायदा हो सकता है इनके साथ भागीदारी बढ़ाने से? देखिए, ये जो तीनों देश जो हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड, ये जो आरसेप के अंदर आते हैं। और अगर आप देखते हैं कि जो कहाँ पे, अगर हम ये जानते हैं कि विश्व का आधा जो पॉपुलेशन जो है इसी मार्केट्स में है, तो अगर हम इनके साथ हमारी जो रिलेशनशिप जो है, रिश्तों को अगर और भी हम सुदृढ़ करें, तो मुझे लगता है कि हमारी अर्थनीति के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुलता है। जो 1990 से एक एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी की शुरुआत हुई, वो शुरुआत तो हुई, पर मुझे लगता है कि कहीं हम हमारी गति जरा धीमी हो गई थी। अब मुझे ये लग रहा है कि जो ईस्ट एशिया समिट से जो भारत का जो अंशग्रहण हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कोई एक नया जोश आ गया लगता है मुझे, और ये जोश भारतीय अर्थनीति के लिए काफी लाभदायक होगा, मेरा मानना है। AKB, my question is that there are a lot of these groupings. Lately we've been seeing it. We've got the BRICS on one side, we've got ASEAN and so on and so forth. At the same time, there is a lot of protectionism that we are all talking about, and we are seeing it now widely open. But now with these groupings, does it also call for some kind of an alarm bell that there are groups of protectionism that is going to happen? Well, first of all, I would like to say that these kind of blocks or groups are only the second best option, because you are seeing a major attack on multilateralism, where the WTO is close to becoming non-functional, because even the dispute settlement mechanism, that process has been stalled. So therefore, you have, on the one hand, you have the danger of multilateralism coming to a halt, and on the other hand, you are seeing countries imposing trade restrictions bilaterally. Now, in this unedifying situation, I would say that groups like RCEP, I would not call the BRICS has reached a point of that, but for example SAARC. Now these are groupings which actually are at least a relief of sorts at a time when multilateralism has come under attack, so that at least on a non-preferential basis, trade among these countries can take place. I agree with you that yes, to some extent, multilateralism is not getting the kind of boost that it should, but at least this is the next best thing that we can hope and look forward to, because after all, global trade is not growing as it ought to be. Actually, after several years, global trade has been growing at a lower pace than the global GDP, which means every country is now looking inwards. It is not a good thing. It is not a good sign for sustained growth. So therefore, at least these kind of arrangements, trading blocks, is better than a situation where bilaterally countries impose trade sanctions against each other. So it should help in mitigating the trade intolerance. Absolutely. वापस स्वदेश में लौटते हुए थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर अक्टूबर में 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.28% पर दर्ज हुई। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में 5.13% और पिछले वर्ष अक्टूबर में 3.68% पर थी। सरकार ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार मुद्रास्फीति में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि की वजह से हुई है। दूसरी ओर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अक्टूबर के दौरान 1.49% की कमी आई, जबकि सितंबर में कमी 0.21% की थी। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में सब्जियों की कीमतों में भी 18.65% की कमी देखने को मिली है। सितंबर में यह गिरावट 3.83% थी। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति का रुख इस सप्ताह जारी खुदरा मुद्रास्फीति के विपरीत है। अक्टूबर में खुदरा मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कम होकर एक वर्ष के न्यूनतम स्तर 3.31% पर आ गई थी। आज जो ये WPI के फिगर्स आए हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। सिर्फ अगर हम देखें महीने दर महीने, तो सिर्फ 0.1% की ही वृद्धि हुई है, 5.28% पर है। पर जो थोड़ा सा एक विरोधाभास उत्पन्न करता है वो है, अगर हम उससे कंपेयर करें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से, तो
ये हमें समझाएं कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 1 ईयर लो पर आए हैं, फिगर 3.31, और इसमें हम लगातार वृद्धि देख रहे हैं। देखिए, ये जो गैप जो आया है, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेड इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इंडेक्स लेड इन्फ्लेशन, ये जो गैप जो आया है, यही दर्शाता है कि इकोनॉमी में प्राइसिंग पावर जो है वो कम हो गई है। प्राइसिंग पावर का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अब उसकी जो इन्फ्लेशन पास ऑन नहीं कर रहे हैं, पास ऑन नहीं कर कंज्यूमर सक रहे हैं, एब्जॉर्ब कर तो रहे हैं। ये एक हम समझ सकते हैं कि जो डिमांड जो है, कंजम्पशन जो है, हमारी कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो बरकरार है, पर जो मैन्युफैक्चरर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो जितना कॉस्ट आ रहा है वो उसको पास ऑन नहीं कर सक रहा है। उसीलिए अगर आप ये जो सेकंड क्वार्टर की जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में देखेंगे, वहां पे वॉल्यूम्स, जो टर्नओवर तो बढ़ गई हैं, पर जो उनका प्रॉफिट का मार्जिन उतना नहीं बढ़ा है। तो इज इट बिकॉज ऑफ कंपटीशन की मार्केट शेयर? एकदम कंपटीशन और मार्केट शेयर को ग्रैब करने के लिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स लेट जो कॉस्ट बढ़ती, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स तो जो मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए ज्यादा हावी होता है, हालांकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आप और हम जैसे लोग जो क्रेता हैं उनके लिए होता है। तो मैं ये मानता हूं ये हमारी जो पूरी अर्थनीति की एक सूचक यही है कि इकोनॉमी में जो प्राइसिंग पावर होती है मार्केट में वो अभी भी कम है। अगर मान लीजिए डिमांड और भी बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, मैं आशा यही करूंगा कि ये प्राइसिंग पावर वापस आने से कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन में भी थोड़ी बहुत जो इजाफा हो सकता है। पर और एक कारण ये है कि WPI ज्यादातर बेस होता है पेट्रोल फ्यूल की जो वेट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फ्यूल की वेट कम है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फूड प्रोडक्ट्स की वेट ज्यादा है और होलसेल प्राइस इंडेक्स में फूड प्रोडक्ट्स की वेट कम है। इस वक्त हमारे अर्थनीति में हम फूड प्राइसेस की दाम उतना नहीं बढ़ रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है क्योंकि सप्लाई बढ़ गया है। इंडियन फार्मर अब बहुत ज्यादा चीज तैयार कर रहा है, मार्केट में ज्यादा चीज ला रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि CPI 3.1 में है और WPI 5.1 में है। इसका एक ही यही है कि RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो CPI को देखता है, WPI को नहीं देखता है, तो उससे हम ये आशा कर सकते हैं CPI अभी भी 3.1 में है, तो शायद जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होगी उससे वो 5.1 से 3 से नहीं होंगी, वो 3.1 से होंगे, तो शायद वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर को ज्यादा कोई परिवर्तन ना ही करे। We have some accolades in the Indian space sector. ISRO heavy lift rocket GSLV Mark III has proven its reliability by successfully launching the communication satellite GSAT-29 from Sriharikota. ISRO chairman Dr. Sivan, in his congratulatory message to his fellow scientists, said the GSLV Mark III has entered majestically into the list of operational launch vehicles today. It will enable the Chandrayaan-2 mission in January next and the Gaganyaan in the next 3 years. Mr. Sivan also said the satellite GSAT-29 will help the Digital India program in a substantive way in ensuring digital connectivity in remotest parts of India. Prime Minister congratulated scientists on this successful launch. आइए चले शेयर बाजारों की ओर। प्रमुख क्षेत्रीय सूचकांकों में मिले जुले रुख के बीच शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग बिना किसी बदलाव के बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से स्टॉक्स में आई बढ़ोतरी कमजोर वैश्विक संकेतों से बेअसर हो गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 3 अंकों की मामूली गिरावट से 35,142 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 6 अंक टूटकर 10,576 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में कल आई गिरावट के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी आ गई। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आने के बाद अधिकांश आईटी कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.19% की बढ़त पर बंद हुआ, हालांकि बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 0.21% की गिरावट दर्ज हुई। Key benchmark indices today ended almost flat amid divergent trend in index pivotals. Gains in stocks triggered by fall in crude oil prices were offset by weak global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange slipped marginally by 3 points to 35,142. The Nifty at the National Stock Exchange also fell 6 points to 10,576. Public sector oil marketing companies gained after overnight slide in crude oil prices, while most IT shares declined after the rupee edged higher against the dollar. Among secondary barometers, the BSE Mid Cap Index rose
0.19%. The BSE Small Cap Index fell 0.21%. The market breadth indicating the overall health of the market was negative. On BSE, 1,203 shares rose and 1,393 shares fell. A total of 136 shares were unchanged. Among the sectoral indices on BSE, IT was down 2.24%, tech down 1.86% and healthcare down 1.65%, underperforming the Sensex. Oil and gas was up 1.18%, FMCG up 0.94% and BankX up 0.52%. आउटपरफॉर्म द सेंसेक्स। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरखशेखर। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज हालांकि फ्लैट रहा है बाजार, लेकिन हाल में हमने कुछ तेजी देखी है बाजार में। अभी आपको क्या लगता है, बाजार में अभी आगे भी क्या वॉलेटिलिटी बनी रहेगी या अब कुछ स्टेबिलिटी का आप रुख आता हुआ देखते हैं? कौन से फैक्टर्स, कौन से ट्रिगर्स बाजार के लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, मुझे लग रहा है मार्केट में वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपरी लेवल से काफी कम हो चुके हैं। करीबन $86 से करीबन $65 हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया को डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेगा। हालांकि मार्केट में वोलेटिलिटी अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इलेक्शंस का जो स्टेट इलेक्शंस का जो दौर है वो अभी शुरू होगा। मिजोरम के इलेक्शंस तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो दो बड़े इलेक्शंस है, ये मार्केट्स को आगे डायरेक्शन देगी। और तब तक मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स, क्रूड ऑयल और रुपी, ये तीनों ही फैक्टर्स पे मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। तो अभी क्या आपकी एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स के लिए, क्या करना चाहिए उन्हें? मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में डेफिनेटली जो ब्लू चिप शेयर्स है और जो फ्रंटलाइन कंपनीज है, अगर यहाँ पे कोई गिरावट मिलती है तो हमको डेफिनेटली मौका अच्छा देख के एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि इस लेवल पे मार्केट्स में कोई खरीदारी करे। होपफुली मेरे ख्याल से अगर मार्केट्स यहाँ से भी थोड़ा करेक्ट होता है तो ही यहाँ पे खरीदने का मौका रहेगा। और मेरे ख्याल से ये एक लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट जो भी इन्वेस्टर्स वोलेटिलिटी के लिए तैयार नहीं है, उनको मेरे ख्याल से यहाँ अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है, उन्हीं के लिए मैं राय दूंगा कि थोड़ी बहुत खरीदारी की जा सकती है। So Avinash, if you look at the mid cap and the small cap, do you suggest that, like you just now said, anybody who's ready for high risk investment, they should only look at the market because the volatility is still on? Do you think that mid cap and small caps are as volatile? Definitely. I think apart from the large cap, some quality mid cap names also could be included in the portfolio. But investors should be prepared for volatility because, crude oil prices, the way they have come down by almost $20 in a week, it remains difficult to perceive whether this fall will be sustained. If there is any further increase in crude oil price, one could obviously see that there could be a further volatility and further negative implication for the market. So I think clearly from a longer term perspective, from a 12 to 15 month horizon, if somebody wants to invest, definitely one can start building a portfolio and deploy at least 20 to 25% of the funds, and the remaining can be deployed, post the state elections are over in December. और अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो सेक्टर में अभी आपको क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर हमने कुछ सेल्स में स्लो डाउन देखा है? हमको लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में इन द इनिशियल नेक्स्ट 3 से 4 महीने में हो सकता है कि थोड़ी बहुत मंदी का दौर चल सकता है, क्योंकि इस बार जो फेस्टिव सीजन हुआ है वहां पे बिकवाली थोड़ी सी कम लेवल पे हुई है। और काफी डीलर्स और काफी कंपनी ने कहा है कि इस बार जो फेस्टिव सीजन हुआ है वहां पे रिस्पांस कस्टमर्स का थोड़ा सा नरम था। तो हमको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि तीसरी तिमाही के नतीजे ऑटो कंपनीज के लिए थोड़े से सॉफ्ट हो, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हमको लग रहा है जो बड़ी कंपनीज है जैसे कि महिंद्रा है, मारुति है, टिपिकली आयशर मोटर्स है, ये कंपनी में कोई भारी गिरावट आती है तो एक खरीदने का मौका समझना चाहिए। बट बेसिकली शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए। श्रोताओं, ये थे अविनाश गोरखशेखर, मार्केट एनालिस्ट, जो बाजार के आज के चलन पर हमसे बात कर रहे थे। और अब रुक करते हैं रुपए का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 36 पैसे मजबूत होकर $72.31 प्रति डॉलर पर आ गया। इससे पिछले सत्र में ये 22 पैसे मजबूत होकर $72.67 प्रति डॉलर दर्ज हुआ था। क्या कहेंगे आप, रुपए में जो मजबूती देख रहे हैं, ये क्या संकेत दे रही है इकोनॉमी के बारे में? देखिए, ये तो जो हमारी जो क्रूड ऑयल प्राइस जो है, जिसकी आप बात कर रहे थे कि वो जो करीबन $86 पर बैरल से अब $66 पर बैरल, जो करीबन $20 की जो एक
कम हुई है, उससे जो हमारी जो डॉलर की डिमांड थी उसमें एक कमी आई है, क्योंकि और उधर ईरान का जो ऑयल का जो क्राइसिस लग रहा था वो रिजॉल्व हो गया अगले 6 महीने तक। तो सडनली जो डॉलर डिमांड की जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव लग रही है। तो उसी का रिएक्शन हम देख रहे हैं कि रुपए में एक स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तो वो मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और मैं इसके ऊपर और तो कुछ इस वक्त नहीं दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कमजोर वैश्विक मांग और अतिरिक्त आपूर्ति से जुड़ी चिंताओं के चलते तेल की कीमतों में आई गिरावट के बीच ऊर्जा क्षेत्र में उत्पन्न दबाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ने से जुड़ी चिंताएं बढ़ गईं और वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज हुई। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.9% की गिरावट में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% के नुकसान पर और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% के नुकसान पर रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की गिरावट में रहा, जबकि प्रमुख बाजारों में एकमात्र बढ़ने वाला बाजार जापान का निकेई सूचकांक 0.2% की बढ़त पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां के प्रमुख बाजारों में भी मंदी का रुख था। लंदन का फुट्सी 0.1%, फ्रांस का कैक 0.5% और जर्मनी का डैक्स 0.4% के नुकसान पर चल रहे थे। The U.S. market, the Dow and S&P 500 ended slightly lower following losses in energy shares and Boeing, offsetting a small gain in technology shares and renewed hopes for progress in trade talks. The Dow Jones fell 0.4% and the S&P 500 slipped 0.2%, while Nasdaq Composite Index remained almost flat. AKB, a brief comment on the Asian and U.S. markets with these elections in America just getting over, what they call midterm, and then you have the uncertainties kind of getting I think the U.S. is almost on a high. Its employment situation is very good. Its growth rates are pretty robust by its standards, and crude oil price is slowing down. The rise is slowing down. And remember, U.S. is one of the biggest consumer of crude oil prices, although it doesn't need to import anything, but the global market prices impact their consumers. So therefore, I think what you're seeing in the markets is that stability and the prospects of U.S. staying the course on all its promises, and even the midterm elections did not spoil the mood so far. So I think till the year end we can hopefully. एक नजर प्रेशियस मेटल्स पर। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 150 रुपए कम होकर 31,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके अलावा स्थानीय आभूषण निर्माताओं की मांग कम हो जाने से भी सोने पर दबाव बना रहा। चांदी तैयार का मूल्य छुटपुट मांग निकलने से 37,450 रुपए प्रति किलो पर टिका रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर के बाजार में सोना 0.08% गिरकर $1,201.90 प्रति आउंस पर और चांदी 0.11% की गिरावट से $14.07 प्रति आउंस दर्ज हुई। And in the oil markets, Brent crude prices in intraday trade today were trading around $66.74, while WTI prices were at around $55.12 when reports last came in. मिस्टर भट्टाचार्य, आपने ऑलरेडी ऑयल के बारे में काफी विश्लेषण दिया है। ऑयल में जो कीमतें गिरी है, क्या उससे एक चिंता भी पैदा होती है कि शायद ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन हो रहा है? नहीं, स्लो डाउन की डर नहीं है। डर ये है कि अगर सऊदी अरेबिया ने जैसे कहा है कि वो अपना प्रोडक्शन कट करेगा, अगर वो कट का जो थ्रेड जो है वो अगर वो कैरी आउट करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो गिरावट जो आई है वो कितनी दूर तक स्थायी होगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। कितना अगर 66 में आ गया है, क्या 70 में आज बढ़ जा सकता है कि नहीं, इसमें एक प्रश्न चिन्ह उठता है। वो ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी इसके ऊपर काफी जरा चिंतित हैं इस वक्त। समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। मिस्टर भट्टाचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। Thank you, EKB. Before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi appeals for balanced and mutually beneficial agreement between countries participating in Regional Comprehensive Economic Partnership Summit in Singapore. Wholesale inflation rises to a 4-month high of 5.28% in October this year, and benchmark domestic indices close almost flat. Rupee appreciates 36 paise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra.